خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ شہر میں سورج صبح سویرے ہی آگ برسانے لگا، ٹمپریچر میں مزید اضافہ متوقع۔ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں 10ویں نمبر پر۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل اسامہ، اگر بات کی جائے شہر کے موسم کی تو سورج کے جو جلوے ہیں وہ برقرار ہیں۔ درجہ حرارت نے بھی مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج بھی کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے آج وہ 55% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں ایک بار پھر سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ دوپہر کے اوقات میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا جو استعمال ہے وہ کریں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو آج فضائی آلودگی میں جو ہے وہ قدرے کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 10ویں نمبر پر براجمان ہے، جبکہ شہر میں اسموک کی جو اوسط شرح ہے وہ 107 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں کی نوید ہے وہ بھی سنا دی ہے، کیونکہ گزشتہ 5-6 دنوں سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو اسے ایک بارشوں کی خوشخبری آئی ہے۔ یہ شہر لاہور کے لیے اچھا ہوگا کہ اگر شہر میں بارش برستی ہے تو موسم خوشگوار ہو جائے گا اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور بارش کا بھی امکان ہے۔ نہ صرف لاہور میں، راولپنڈی، مری، گلیات، سیالکوٹ، اکاڑا، فیصل آباد اور میاں والی میں بھی جو ہے وہ تیز آندھی اور اس کے ساتھ ہے بارش کا امکان ہے، جس سے موسم جو ہے وہ 1-2 دنوں کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارشوں کا یہ جو سپیل ہے یہ 2 دن کا سپیل آئے گا اور اس کے بعد پھر سے گرمی کی جو لہر ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور 21 سے 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ ویو کے امکانات بھی ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں اور تمام تر جو گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ جب باہر نکلتے ہیں دوپہر کے اوقات میں تو سر پر کیپ لیں یا پھر چھتری لازمی رکھیں اپنے پاس۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ رواں ماہ درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے، جس میں ہیٹ ویو کے بھی امکانات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلع انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ پہلے سے ہی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ سامع۔ برائلر سستا، انڈے مہنگے ہو گئے۔ مرغی کا گوشت 20 روپے سستا، فی کلو قیمت 438 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر بھی 14 روپے فی کلو سستا۔ زندہ برائلر ہول سیل 291، پرچون ریٹ 302 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 262 روپے ہو چکی ہے۔ زندہ برائلر بھی 14 روپے فی کلو سستا ہو چکا ہے اور آپ کو بتائیں کہ فی کلو قیمت کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ 438 روپے مرغی کا گوشت ہو چکا ہے۔ مرغی کا گوشت 20 روپے سستا ہوا ہے، جبکہ زندہ برائلر بھی 14 روپے فی کلو سستا ہوا ہے۔ برائلر سستا ہوا ہے جبکہ انڈے مہنگے ہوئے ہیں۔ مرغی کا گوشت 20 روپے مہنگا ہونے کے بعد اب 20 روپے سستا ہوا ہے، فی کلو قیمت 438 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر بھی 14 روپے فی کلو سستا ہوا۔ زندہ برائلر ہول سیل 291، پرچون ریٹ 302 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 262 روپے ہو چکی ہے۔ گرمی کے موسم میں بھی انڈوں کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نظرنامہ میں جاری کیا گیا اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، تاہم انڈوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انڈوں کی قیمتوں میں 1 روپے فی درجن تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج مزید 1 روپے بڑھا کر 262 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے سرکاری ریٹ میں۔ اسی طرح ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی جو ہے 7,740 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے جو ایک ڈیلر کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ انڈوں کی سپلائی جو ہے وہ دن بدن کم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انڈوں کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان جو ہے وہ جاری ہے۔ تاہم دوسری جانب برائلر کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ برائلر کی قیمتوں میں 20 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت 438 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے سرکاری رینج میں اور مارکیٹ میں ساتھی برائلر گوشت جو ہے وہ 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 14 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 280، جبکہ ہول سیل
जिंदा ब्रायलर जो है या सप्लाई जिसे कहा जाता है वो 291 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर 302 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि 3 दिनों में ब्रायलर की कीमतें 59 रुपए फी किलो तक बढ़ाई गई थी, ताहम आज जो है वो महज 20 रुपए फी किलो तक कम की गई है। और ब्रायलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम की वजह से शहरी जो है वो परेशान है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इंतजामिया कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही। जी आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी। गर्मियों की छुट्टियां 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। आज से 31 मई तक सुबह स्कूल 7 बजे से 11:30 बजे तक लगा करेंगे। ईद गर्मी से कुमलाए हुए बच्चों के लिए अच्छी खबर। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 1 जून से होगा। छुट्टियां 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। स्कूल 15 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। दूसरी तरफ पंजाब भर में शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। महकमा स्कूल एजुकेशन के दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक स्कूल सुबह 7 बजे लगा करेंगे, जबकि 11:30 बजे छुट्टी होगी। जुमा के रोज छुट्टी 10:30 बजे होगी। इसके अलावा 31 मई तक डबल शिफ्ट और आफ्टरनून स्कूल खत्म कर दिए गए हैं। सेकंड शिफ्ट और आफ्टरनून स्कूल्स के बच्चे भी सुबह पढ़ने आएंगे। स्कूल में बच्चों की तादाद जायद होने पर आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज स्कूल आएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक निजी और सरकारी तमाम स्कूलों पर होगा। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में मजीद ₹1.47 फी यूनिट इजाफा वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होगी। बिजली कंपनियों ने तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक मुजव्विजा छमाही एडजस्टमेंट की वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में होगी। इस वक्त ₹2.75 छमाही एडजस्टमेंट आयद है जो जून तक वसूल की जाएगी। बिजली कंपनियों ने माली साल 23-24 की तीसरी छमाही के लिए एडजस्टमेंट की दरखास्त की थी। प्रोटीन का बड़ा जरिया गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। मटन, बीफ हो के ब्रायलर सबकी खरीदारी मुश्किल तर। शहरी कहते हैं कि मटन और बीफ खाने के लिए बड़ी ईद का इंतजार करना पड़ता है। ब्रायलर गोश्त खाना जब ख्वाब बन जाए तो ऐसे में आम लोगों के लिए मटन और बीफ खरीदने के ख्वाब भी नहीं आते। मार्केट में मटन 2400 रुपए किलो और बीफ 1200 से 1500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में मटन 1600, बीफ 800 रुपए और चिकन 458 रुपए किलो है। लाहौर के किसान मनमाने दामों पर बकरे, गाय और बछड़े का गोश्त बेचने में मसरूफ। शहरियों ने हुकूमत से मटन और बीफ की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मटन और बीफ खाने के लिए ईद का इंतजार करना पड़ता है। गरीब आदमी बहुत परेशान है और खुदकुशी कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं भूखे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मटन और बीफ तो गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है। ये तो सिर्फ गरीब आदमी बड़ी ईद पे ही खाता है साल में एक दफ़ा। बाकी ये मुर्गी का गोश्त है, ये इसका रेट कुछ अब कह लें कुछ बेहतर है। ब्रायलर की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट में मुतय्यन कर दी जाती हैं, मगर मटन और बीफ की कीमतें डीसी रेट लिस्ट में कई माह बाद मुकर्रर की जाती हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी कर दी गई। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को नए किराएनामे पर इतलाक के लिए टास्क दे दिया गया। दूसरी जानिब बदामी बाग लारी अड्डा पर ताहाल नए किरायों का इतलाक नहीं हो सका। ट्रांसपोर्टर्स बदस्तूर शहरियों से मर्जी का किराया वसूल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचना शुरू। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के बाद किराए में कमी कर दी। डीजल में कमी की मुनासबत से किराए में 10% तक कमी की गई। लाहौर से मुल्तान का किराया 1600 से कम करके 1440 रुपए कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ का किराया 1670, बहावलपुर 1620 और लाहौर से खानीवाल का किराया 1450 रुपए कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से पंजाब भर के RTS को किराए में कमी करवाने के इकदाम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी PTA फैसल सुल्तान ने तमाम अजला के RTS को हुक्म जारी किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराए में कमी के हवाले से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, जबकि शहरियों का कहना है कि किराए में कमी तो दूर की बात, ओवर चार्जिंग की जा रही है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन इस किस्म का नहीं पहुंचा के 15 रुपए कमी हो गई है। DCO साहब को भी पता होगा, RT सेक्रेटरी साहब को भी पता होगा, उनके बंदे खुद यहाँ आकर किराए नामे चेंज करवा के जाते हैं। ये हमारे पास में नहीं है, खुद ही आपको हम किराया लगा रहे हैं। पहले हम 2 से 3 दिन पहले गए थे तो 1400 रुपये था किराया,
तो उन्हीं 2-3 दिन के बाद ये 1700-1600 रुपये हो गया है। बात की है तो ये इन्होंने हमें ये बैनर पे अवेजा जो लगे हुए हैं रेट्स ये दिखाए, तो अब हमने इनसे बहस भी की है कि कोई रिलैक्सेशन दे हमें, तो ये कहते हैं फाइनली आपको 1500 रुपये लग जाएगा। MMPI पंजाब की पंजाब बस ऑनर्स फेडरेशन के सदर मलिक नदीम हुसैन और चौधरी फलक शेर से मुलाकात में उनकी जानिब से तमाम इंटरसिटी बसों के किराए में 10% कमी करने का ऐलान कर दिया गया। अरबाब इख्तियार के रवायती बयानात जलती पर तेल का काम करने लगे। अवाम की बड़ी तादाद ने हुक्मरानों के बयानात पर एतमाद करना छोड़ दिया। अवाम का शिकवा है कि हुक्मरान हमेशा अवाम से कुर्बानी मांगते हैं लेकिन अपनी मराद कम नहीं करते। हुकूमत अवाम के मसाइल से पूरी तरह आगाह है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मिलावट करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत बचत पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा और वगैरह वगैरह। इस नोयत के बयानात हर रोज़ पढ़ने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये भी जान लेते हैं कि अवाम ऐसे बयानात के बारे में क्या राय रखते हैं। बयानात से तो कुछ नहीं ना होता, अगर हम उनको अमल करेंगे तो फिर ही है ना। कहने को तो हम बहुत बातें करते हैं। जब भी मैं ऐसे बयानात देखता हूँ ना, मैं अपने मतलब कि मेंटली सुकून को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता कि ये फजूल चीज़ें हैं। 25-30 साल तो हो गए हैं मुझे देखते हुए, वही वादे वही बातें। अगर कोई मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है, उसके साथ क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मफाद परस्तों का मफाद ख़राब होता है। देखा जाए तो अवाम ये सोचने में हक बजानम है कि अरबाब इख्तियार शायद सिर्फ बयानबाजी से ही मामलात चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हकायक ये हैं कि आज 20.7% के तनासुब के साथ महंगाई अपने अरूज पर है। पानी का बिल जो कुछ अर्से पहले तक 300 से 400 रुपए के दरमियान होता था, वो अब 2000 रुपए तक पहुंच चुका है। बिजली और गैस के बिलों के जरिए अलग से अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है और अशराफिया सालाना 17 अरब डॉलर की मराद डकार जाती है। मैंने पहले दिन से कह दिया था कि मैंने किसी किस्म का कोई मिनिस्ट्री का अलाउंस या मैंने सैलरी जो है मिनिस्ट्री की नहीं लेनी, और मैं नहीं ले रहा। जो केयर टेकर से पहले अगर आप खर्चे उठा कर देख लें और अभी के देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है ख़र्चों में, और उसमें जो है वो ऑडिट रिपोर्ट भी जो है वो जल्द आ जाएगी। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन शायद अब मालियाती खसारे की तरह एतमाद का खसारा भी नाकाबिले वापसी सतह तक पहुँच चुका है। बेशक मालियाती खसारा भी मुख्तलिफ हवालों से बेशुमार मसाइल का बाइस बनता है, लेकिन ये जो ख्वास और अवाम के दरमियान एतमाद का खसारा अपने इंतहा को पहुंच चुका है, इसने तो जैसे पूरे मुल्क के निज़ाम को ही तलपट करके रख दिया है, जिसका एक अंदाज़ा मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। सब्जियों और फलों के बढ़ गए दाम, आवाम कीमतें सुनकर परेशान। लहसुन 740, लीमू 700, अदरक 650, प्याज 120, टमाटर 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, भिंडी 350, अरवी 320, मटर 300, आलू 120 रुपये फ़ी किलो, केला दर्जा अवल 180, दर्जा दोम 130 रुपये फ़ी दर्जन, खजूर ईरानी 520, सेब 400, अमरूद 250, पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 160, खरबूजा 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया इनमें जो मौसमी सब्जियां हैं वो शामिल हैं, क्योंकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में सरकारी रेटों के बरक्स ही प्याज, टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 95 रुपये सरकारी रेट इसमें मुकर्रर की गई है। मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। शलजम 10 रुपये महंगे करके 40 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में शलजम 100 रुपये फ़ी किलो से तजावत कर चुके हैं। शिमला मिर्च 60 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये मुकर्रर की गई है। ताम मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना 5 रुपये महंगी करके 55 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में गाजर चाइना 80 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन घिया कद्दू की फरोख्ती मार्केट में 70 के बरक्स 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी अब्दुल कादिर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से इक़दाम क्यों नहीं कर पा रही और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ हैं और क्यों नज़र नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो चंद एक बाज़ारों में जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन पूरे
لاہور کی مارکیٹوں، بازاروں اور منڈیوں کی صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ریلسوں پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. ہول سیل مارکیٹوں میں بھی یہی صورتحال ہے اور پرچون مارکیٹوں میں بھی یہی صورتحال ہے. جب تک جو انتظامیہ جو ہے وہ زمینی جو کاروائیاں نہیں کرے گی، یعنی کہ دکانوں پر، منڈیوں پر اور ہول سیل مارکیٹوں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے گی، تب تک ان سرکاری ریلسوں کا کوئی فائدہ جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے گا. روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نقناموں کا اجرا کیا جاتا ہے، قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن روزانہ ہی ان پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. جی عبدالقادر، یہ بتائیے کہ ایک عام پرچون دکان والا یہ الزام لگاتا ہے کہ ہمیں منڈی سے ہی سب چیزیں مہنگی ملتی ہیں، تو کیا بولی کے حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نظر نہیں رکھتے، وہاں جا کر خود بولی نہیں کرواتے؟ ابھی جب آکشن کی جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نہیں، سبز منڈی انتظامیہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور وہی یہ سرکاری نقناموں کا اجرا کرتی ہے، کیونکہ آکشن یا بولی کے مطابق جو ہے وہ قیمتوں کا اندراج کیا جاتا ہے. لیکن یہ اندراج جو ہے وہ صرف سبز منڈی انتظامیہ کی جانب سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یا پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ ان جو سرکاری ریلسٹ ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کروا پاتی. یہی وجہ ہے کہ ایک انتظامیہ جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کرتی ہے اور دوسری انتظامیہ جو ہے وہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بناتی ہے، لیکن دونوں میں آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر.